Praise God for this wonderful and bright sunny day that He has granted us in His graciousness. परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से जो हमें ये दिन दिया हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। Today we are starting a new series of messages आज हम एक नए संदेशों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, on a book that we have not touched before. एक ऐसी हिस्से से वचन में से जो हमने कभी नहीं पढ़ा। In fact, not very many people preach from this book or learn or study this book. यहाँ तक कि कई लोग इसमें से ज़्यादा शिक्षा नहीं लेते और उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। Some are scared and some people scare others from this book. कुछ लोग डरते हैं और कुछ लोग डराते हैं इस वचन के हिस्से से। I'm talking about the book of Revelation, the last book in the New Testament. और मैं आपसे आज बातचीत कर रहा हूँ नए नियम की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य से। We are not going to be doing the whole book of Revelation, हम पूरी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से नहीं करेंगे, but this series is called Overcoming Faith. पर ये जो श्रृंखला है संदेशों की है, यह है विश्वास पे कैसे हमें से विजय पाना है, In which we will be trying to unpack Christ's letter to the 7 churches that he wrote through John. और हम उन संदेशों को, उन पत्रों को पढ़ेंगे, खतों को पढ़ेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना को मिले। So in the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, which is the last book of the New Testament, जो इस पुस्तक का इस नए नियम की अंतिम पुस्तक है, this book or this revelation और ये जो प्रकाशन है is called the revelation of Jesus Christ. इस प्रकाशन को बोलते हैं यीशु मसीह का प्रकाशन। Chapter 1 and verse 1 of the book of Revelation says, और प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय की पहले आयत में लिखा है, the revelation of Jesus Christ, उसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन which God gave him, that is Jesus Christ, जो परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को दिया, to show to his servants the things that must take place. यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें, He made it known by sending his angel to his servant John. जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। So see this here clearly. हम ये स्पष्ट रूप से देखते हैं, God revealed these things to Jesus Christ. परमेश्वर ने इन बातों को यीशु को प्रकाशन दिया, The purpose of giving to Jesus Christ, और उसका उद्देश्य यीशु को देने का ये था that he will show these to his servants, to his apostles. कि वो इन बातों को अपने दासों को, अपने प्रेरितों को दिखाए। About what? किस कारण? The things that must take place. जिन बातों का होना अवश्य है। It does not mean इसका अर्थ ये नहीं that this is only about the future, that things will take place in the future, somewhere in uncertain future. ये ऐसी बातों के विषय में नहीं जो भविष्य में, ऐसे समय में जो कोई अनिश्चित समय है भविष्य का, But in the time that this revelation was given to his servants who were still alive, पर ये उस समय प्रकाशन दिया गया उसके दासों को जो उस समय जीवित थे, to the churches that were in existence at the time of this revelation, और ये जो कलीसियाएं थी ये उस समय में पाई जाती थी, इस प्रकाशन के समय that में, is at the end of the 1st century, जो कि प्रथम शताब्दी का अंतिम समय था। what things will take place in that century and in the following centuries. कि उस शताब्दी में क्या होने वाला है और उसके आने वाली शताब्दियों में क्या होने वाला So है। this book is not necessarily only about the second coming of Jesus Christ and what will happen afterward. तो ये जो प्रकाशन है ये केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय से ही संबंधित नहीं है या उसके बाद जो होने वाला है, But about the churches that are before that on this earth and what will take place in them and through them. परंतु ये उससे पहले जो कलीसियाएं हैं
उनके विषय में भी है कि उनके साथ क्या होगा, उनको कैसे रहना है। And chapter 1 and verse 4 says, और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी चौथी आयत में इस प्रकार लिखा है, John, who is the beloved disciple of our Lord Jesus Christ, that is the Apostle John, और यूहन्ना की ओर से जो is it fourth verse here? chapter 1 and verse 4, चौथी आयत में लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। so John the Apostle, the beloved apostle of our Lord Jesus Christ, और यूहन्ना जो प्रेरित है प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला, he wrote to 7 churches, 7 different letters, और यूहन्ना ने इन 7 कलीसियाओं को 7 अलग-अलग खत लिखे। and these letters were dictated by the Lord Jesus Christ to John, and he wrote to them to the 7 churches. और ये जो खत है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जॉन को यूहन्ना को दिए गए ताकि वो 7 कलीसियाओं को दे सके। These 7 letters are given to us और ये जो 7 पत्र हैं ये हमको दिए गए in the book of Revelation, ये हमको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दिए गए, chapter 2 and chapter 3. दूसरे और तीसरे अध्याय में। These are 7 different churches in 7 different cities, और ये 7 पत्र हैं जो 7 अलग-अलग शहरों में दिए गए, but they were in one geographical location, लेकिन उनकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो एक ही थी, that is the Asia Minor, और वो थी एशिया माइनर, which was at that time controlled by the Roman Empire. जो कि इस समय रोमी साम्राज्य के अधीन था। And these are the 7 churches: और ये 7 कलीसियाएं हैं Ephesus, जिसका नाम है एफेसस, Smyrna, स्मरना, Pergamum, परगमम, Thyatira, थियोटिरा, Sardis, सार्डिस, Philadelphia, फिलाडेल्फिया Laodicea. और लौदीसिया की कलीसिया। In chapter 2 and 3, all of these letters are given to us by the Apostle John that Jesus asked him to write to these 7 churches. और ये 7 पत्र हैं ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना प्रेरित को दिए गए इन कलीसियाओं के लिए ताकि हम तक ये पहुंचे। These were real places और ये एक सही में ये जगहें हैं that were in the Asia Minor, जो एशिया माइनर में थी, and there is a sequence in which these letters were written. और यहाँ एक स्तर है जिसमें ये खत लिखे गए। Chapter 2 says the first letter that was written was to the church in Ephesus. और दूसरे अध्याय में जैसा कि लिखा गया पहली आयत के द्वारा कि ये जो है ये एफेसस की कलीसिया को लिखा गया, Because that was closest to the Mediterranean coast. क्योंकि ये मेडिटेरेनियन के किनारे पर था। And a messenger who took these letters from John, और ये पत्र जो दूत के द्वारा यूहन्ना से दिया गया, he will first go to the city which was closest to the coast, और ये दूत जो था ये उस खत को लेकर सबसे करीबी वाले शहर के पास जाता था, that is जो Ephesus, कि इफिसुस है इस समय में, and then travel north और फिर उसके बाद वो उत्तर में जाता है, to Smyrna, which was the closest city. और उसके बाद वो उसके करीब जो शहर है स्मरना वहां So जाता है। exactly the same sequence that you see in these chapters, chapter 2 and 3, which was followed by this messenger distributing these letters to these 7 churches. और जैसे जैसे जो करीब होता था शहर उसके पास ये दूत यूहन्ना के इन खतों को लेकर जो यीशु के द्वारा उनको मिला था उसको लेकर जाता था 7 कलीसिया के पास। Now, the message of all 7 churches is different, और ये जो कलीसियाओं को जो खत लिखे गए ये हर कलीसिया के लिए फर्क है, but each of these letters have a similarity with the other. लेकिन किसी प्रकार से ये एक दूसरे के समान भी हैं। For example, उदाहरण के लिए each of these letters हर एक इन खतों में begins with a description of the Lord Jesus Christ, the one who was writing these letters to these churches. और हर एक पत्र जो लिखा गया वो शुरुआत उसकी होती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो कौन था। So the description of Jesus Christ और उसमें जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया जाता है at the beginning of each letter
हर एक खत के शुरुआत में is related to what message follows after that description of the Lord Jesus Christ. और उसमें जो भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है, उनके चरित्र के बारे में, वो उस खत में जो आगे आने वाला है उसको दर्शाता है. And almost each of these letters और हर एक इस खत में proclaims that the Lord Jesus Christ knows them and their deeds. और उसमें हर एक का अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह उनको जानता है, उनके कार्यों को जानता है. Then each of these letters, और फिर इन हर एक इस खत में except maybe the last letter to Laodicea, सिवाय लौदीसिया की कलीसिया के खत के लिए, it has a commendation about them, what they have done. और उसके बारे में वो एक उनको उत्साहित करते हैं, खुश होकर बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है. But I wanted to also show you on the map of these churches where they were. पर मैं इसके साथ साथ इसके नक्शे में भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जगहें कहाँ हैं. So this is the Mediterranean Sea, और ये मेडिटेरेनियन सागर है. and these are the 7 churches that Jesus wrote to. और ये 7 कलीसियां हैं इस नक्शे पे, जिन कलीसियाओं के लिए ये खत लिखा गया. And as it says, the first letter is to Ephesus, और जैसे कहा गया पहला पत्र इफिसस के लिए है, because the messenger traveled through the sea and he first came to Ephesus, और इसलिए क्योंकि दूत जब समुद्र से आया तो वो पहले इफिसस में गया. traveled to Smyrna, so the second letter it is to Smyrna, and the third letter is to Pergamum, then Thyatira, then Sardis, then Philadelphia, then Laodicea, and then he went wherever he wanted to go. और फिर ये दूत इन 7 कलीसिया इफिसस, स्मरना, परगमम, थिएटिरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया, लौदीसिया कलीसिया के बाद खतों को बताने के बाद फिर वो वहां से गया जहां उसको जाना था. Now John, to whom Jesus was revealing these letters and asking him to write these letters, अब यूहन्ना जिनको प्रभु यीशु मसीह प्रकाशन दे रहे थे इन खतों के बारे में कि उनको क्या लिखना है, किसको लिखना है, he was lonely and he was secluded in an island. और इस समय ये वो परिस्थिति थी जब यूहन्ना प्रेरित जो है वो एक पतमस आइलैंड पर अकेले अंधकार में थे. It is believed that he was the last of the apostles that was still remaining alive. Probably he was 100 years old at that time. और ऐसा बताया जाता है कि यूहन्ना प्रेरित जो हैं शायद इस समय एक अकेले प्रेरित थे जो जिंदा थे और काफी बुजुर्ग थे. He was at the time of the writing of these letters. और इन खतों के लिखे जाने के समय में He was on this island of Patmos. वो इस टापू पे थे जिसका नाम था पतमस. So the Patmos island where the Lord gave him a vision and asked him to write these letters so that a messenger will go from there and take these letters to all these churches. और ये पतमस आइलैंड जो है ये बिल्कुल अलग है और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन यूहन्ना प्रेरित ने पाया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो शब्द उनको दिए गए जो उनको इस खत में लिखने थे. The time at the writing of these letters is very crucial. और जिस समय में ये पत्र लिखे गए ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना. They were going through severe persecution, और ये वो समय था जब ये बहुत सताव में से होकर गुजर रहे थे, suffering, और बहुत ही परेशानी थी. and were struggling in their faith. वे अपने विश्वास में बहुत ही संघर्ष कर रहे थे. That's why I titled this series Overcoming Faith, how in the midst of suffering and in the midst of pain and persecution you and I can also learn to overcome in our faith. इसलिए मैंने इसका शीर्षक दिया अपने विश्वास में विजय पाना, क्योंकि इस संघर्ष के विषय में के बीच में सताव के बीच में ये कैसे अपने आप को स्थिर रख पाए, ये हमारे लिए भी जरूरी है कि हम कैसे अपने आप को स्थिर रख सकते हैं विश्वास में. Though initially these messages were to these 7 churches, historical places and historical churches, और ये जो ऐतिहासिक जगहें थी, ऐतिहासिक कलीसियाएं थी, जबकि ये पत्र उनके लिए लिखे गए, but I believe that because the Lord Jesus Christ asked John to write them, पर मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने
जब यूहन्ना प्रेरित को ये खत लिखने के लिए बोला, he wanted that they should be written down for every church in history, including ours. और मैं विश्वास करता हूँ ये जो कलीसियाओं को जो पत्र लिखेगा ये इसलिए ताकि इसके बाद आने वाली जो कलीसिया, इसमें हमारी कलीसिया भी शामिल है, वो भी इस बात को जान सकते They reveal a lot about our Lord Jesus Christ, और इसमें हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन के बारे में काफी जानने को who मिलता है। he is, वो कौन है, what he does, वो क्या करते हैं, and when he comes to our church, और जब वो हमारे कलीसिया में आते हैं, when he evaluates churches, how he does them, what is the criteria he uses to evaluate churches. तो यदि प्रभु यीशु मसीह में हमारे बीच में आए तो क्या क्या बातें हैं जो वो हमारी कलीसिया में देखना चाहेंगे, कैसे उसको वो इवैल्यूएट करेंगे। So this is the brief overview of all the letters. तो ये एक संक्षिप्त में एक पूरा जानकारी है इन सातों कलीसियाओं के जो खत हैं उनके विषय में। First, in each of these letters, he describes who this is from. और पहली जो बात उसमें लिखी जाती है पत्र में वो ये कि वो किसके द्वारा लिखा गया। To each of the letters and to each of the churches, हर एक कलीसिया में जो हर एक पत्र लिखा गया, a different aspect of the Lord Jesus Christ, the writer of these letters, is described to us. और हर एक खत में प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया गया है, जिसने ये पत्र लिखने के लिए शब्द दिए यूहन्ना को कि वो कौन है, वो वहां से वो शुरुआत होती है। Then in each of these letters, फिर हर एक इन खतों में Jesus begins by commending them, by praising them for what they have done best. और फिर दूसरी बात जो इन पत्रों में दिखाई देती है, जो लिखी जाती है, प्रभु यीशु मसीह उनको शाबाशी देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। There was one church actually Jesus has no commendation for. एक कलीसिया है जिसमें प्रभु यीशु मसीह की इस कलीसिया के विषय में कोई प्रशंसा नहीं जाती। Then Jesus also critiques them. He provides them their criticism, and I want to be in this. There were two churches that Jesus had nothing to criticize them for. Wow. और एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में उस पत्र में लिखा होता है कि वो किस बात के लिए उनकी आलोचना करते हैं, और उनमें से दो कलीसियां ऐसी हैं जिसमें कोई आलोचना का कोई विषय ही नहीं है। Then there is a call to action. फिर उसमें एक जो आखिरी बात जो उसमें हमें दिखाई देती है कि उन्हें क्या करना चाहिए उसके लिए, Each of the churches, हर एक कलीसिया के लिए, what Jesus wants them to do now. कि प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं उनसे कि वो करें। Then there is also a warning. If they do not heed and obey and repent, then what will happen to them? That also is provided at the end of these letters. और इन पत्रों के आखिर में ये भी चेतावनी दी गई है, यदि वो इन बातों को नहीं मानेंगे तो उनके साथ क्या होगा। Because Jesus commanded his disciple John to write these, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया था यूहन्ना को उस प्रकाशन के विषय में जो उन्होंने दिया कि उनको ये लिखना है, that means he wanted these letters to be preserved, इसलिए वो चाहते थे कि जो पत्र हैं ये प्रिजर्व किए जाएं, रखे जाएं, to reach us now in the 21st century, कि ये हमारे पास तक पहुंचे अभी 21वीं शताब्दी so में, that they could be applied to us if we find ourselves in the situations that these churches found. ताकि हम इनको अपने जीवन पर लागू कर सकें, इनको पढ़ने के द्वारा कि हम किस श्रेणी में पाए जाते So हैं। in this series of Overcoming Faith, Unpacking Christ's letters to the 7 churches, और ये जो श्रृंखला है संदेशों की कि हम कैसे अपने विश्वास में स्थिर रहें और कैसे प्रभु यीशु मसीह के इन पत्रों को जो 7 कलीसियाओं को दिए उनको पढ़ सकते हैं। part 1 deals with the first letter, और पहला हिस्सा जो इस श्रृंखला का है वो पहले खत के विषय में है, in which Jesus praised these church because they were testing false apostles. और प्रभु यीशु मसीह इनकी तारीफ करते हैं इस पत्र में क्योंकि ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं उनको टेस्ट करते हैं। So that first letter इसलिए जो पहला पत्र है is to the church in Ephesus. और जो पहला खत है वो एफेसस की कलीसिया के लिए है। This is where Ephesus was, और आप नक्शे में देख सकते हैं एफेसस कहाँ है, not far from Patmos, where Saint John or Apostle John was at that time. और पतमस आइलैंड में जहाँ पर टापू में जहाँ पर यूहन्ना थे उससे ज़्यादा दूर नहीं है।
And where do we find this letter? In the chapter 2 of the book of Revelation. और इस पत्र को हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में। Somebody read that please for us. कोई मेहरबानी से पढ़ना चाहेगा? Okay, thank you. May the Lord add his blessings to the reading and hearing of his word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। You can see clearly the elements that I was talking, that is part of each and every letter. और जब कि आपने इसको पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जो मैंने छोटे छोटे हिस्से उस स्लाइड में बनाए थे वो आप उनको पा सकते हैं It इसमें। names the church to which it was written. उसमें नाम लिखा है उस कलीसिया का जिसको वो Then पत्र he लिखा गया, describes who is this writing. और फिर उसमें लिखा है वो कौन है जो इसको लिख रहा है, And then he says, I know your works and your deeds. और उसमें लिखा है फिर कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या काम किए हैं, And then he also describes them that this thing I have against you. और फिर वो ये भी लिखा है कि मैं तेरे विरुद्ध में ये कहना चाहता हूँ। And then he closes with a warning, let everyone who has ear, let him hear what the Spirit is saying to the churches, and everyone who conquers, he will give them permission to eat from the tree of life that is in the paradise of God. और फिर वो उन्हें चेतावनी देते हैं और कहते हैं जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता, जो जय पाए वो उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। So this is to whom, first of all? तो पहली बात ये किसके लिए है? To the angel of the church in Ephesus. ये जो एफेसस की कलीसिया का जो दूत है उसके लिए है। Angel means the messenger, the leader of the church in Ephesus. और दूत का मतलब है जो भी अगुवा है उस कलीसिया का। In this book, several times John uses the word angel. और इस पुस्तक में कई बार यूहन्ना प्रेरित दूत का शब्द इस्तेमाल करते हैं। Angels are carrying out God's divine mission on this earth. और दूत जो है वो परमेश्वर का स्वर्गलोक एक मिशन है उसको पूरा कर रहे हैं। So the leaders of these churches, इसलिए जो अगुवे हैं इन कलीसियाओं के, going through suffering and persecution and fear, जो डर से परेशानी से सताव से होकर गुजर रहे हैं, are called God's messengers. उनको परमेश्वर का दूत बोला They जाता है। are a privileged people because they have a message Amen. and a mission of Amen. God to be executed on this earth. आमीन। और ये जो लोग हैं ये सौभाग्यशाली हैं क्योंकि इनको एक कार्य दिया गया है कि परमेश्वर के कार्य को जो उनको सौंपा गया उसको पूरा करें। And this was a church in Ephesus, और ये जो एक कलीसिया है एफेसस की, which was a very prominent city in the Asia Minor during the Roman Empire. और रोमी साम्राज्य के समय में ये एक बहुत ही जानी पहचानी एक शहर था। Because of its location, it was a commercial hub. और क्योंकि इसका जो जहाँ पर ये स्थित थी वहाँ पर काफी व्यवसाय होता था। Also, it was famous for the temple of Artemis. और क्योंकि ये इसलिए भी प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर था आर्टेमिस का। That was actually one of the 7 wonders of the ancient world, the temple of Artemis in Ephesus. और ये 7 जो वंडर्स हैं पूरी दुनिया के, ये उनमें से एक था। Just about 50 years ago, करीब 50 साल पहले Apostle Paul came here for the first time. जो प्रेरित यूहन्ना वो इस स्थान पर आए Apostle थे। Paul came here for the first time. और प्रेरित पौलुस जो है वो पहली बार इस जगह पर आए थे। He stayed there for about 3.5 years. वो यहाँ पर कम से कम 3.5 वर्ष तक रहे थे। He preached the gospel extensively in Ephesus. और बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही जोश के साथ उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार किया था। And the people who were involved in the businesses at Artemis were mad at Apostle Paul. और जो लोग इस मंदिर के व्यवसाय में बहुत ही बिजी थे वो खुश नहीं थे पौलुस से। And that's why they complained against him and he finally had to leave.
और उन्होंने उसके विषय में कंप्लेन किया और उनको वहां से जगह छोड़नी पड़ी। But by the time he left, पर जब तक उन्होंने उस जगह को छोड़ा, Apostle Paul had planted a very beautiful church in the city of Ephesus. और जो पौलुस प्रेरित थे उन्होंने अपने छोड़ने से पहले एक बहुत ही सुंदर एक कलीसिया की वहां स्थापना की थी। And the second thing we see in this letter, दूसरी बात जो हम इस पत्र में पाते हैं, in chapter 2 and verse 1 says, प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय की पहली आयत में, these are the words of him. ये शब्द उसके हैं। That means the description of Jesus Christ who was writing this letter to the church in Ephesus. और इसका मतलब है ये जो है ये विवरण है प्रभु यीशु मसीह का जो उस कलीसिया के लिए लिखा जाना जरूरी था। And who is he? और वो कौन है? He is the one who holds the 7 stars in his right hand. और किसके विषय में? यीशु के। और वो कौन है जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है? And he is the one और ये वही है who walks among the 7 golden lampstands. और ये वही है जो सोने की 7 दीवटों के बीच में चलता फिरता Now, what है। are these 7 stars that he is holding in his right hand? और ये 7 तारे क्या हैं जो यीशु अपने हाथों में पकड़े हुए हैं? And what are these 7 golden lampstands among which Jesus seems to be walking? और ये 7 दीवट क्या हैं जिनके मध्य में होते हुए यीशु गुजरते हैं? See, in order to understand this, इसको समझने के लिए we must go back to chapter 1 of this book of Revelation. इसको समझने के लिए हमें प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में जाना होगा। And in chapter 1 and verse 12 to 16, और प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय की 12 से 16 आयत में it says, in his right hand, Jesus in his right hand, he held 7 stars. और 12वीं आयत में लिखा है, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। Verse 16. और 16वीं आयत में लिखा है, In his right hand he held 7 stars. और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। And then in verse 16, 16 we read, and then he also says, verse 20, verse 20 please, anybody? Yeah, the mystery, underline that, the mystery of the 7 stars that you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands, and the 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. और प्रकाशित वाक्य 1:20 में इस प्रकार लिखा है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। So the 7 messengers that are mentioned in these 7 letters इसलिए जो 7 दूत इन 7 पत्रों में जिनका विवरण है, are the leaders of these churches. वो इन कलीसियाओं के अगुवे हैं। These leaders, these messengers, these angels are under the absolute authority of our Amen. Lord Jesus Hallelujah. Christ. और ये जो दूत हैं, ये जो अगुवे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में खड़े हुए हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में हैं In सीधे fact, से। he holds them in his right hand of authority and power. हालेलुया। और इन अगुवों को प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ के अधिकार में और अपनी सामर्थ्य में रखते हैं। Whenever you see a church threatened by persecution and whatever is going around them, जब भी आप किसी अगुवे को, किसी दूत को, किसी पासबान को आप परेशानी में से और भय में से और सताव में से होकर गुजरते हुए देखते हैं, we must be reminded of the words of our Lord Jesus Amen. Christ, तो हमें अपने आप को याद दिलाना है प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के लिए, that he
holds these angels and the Hallelujah. leaders of the church in his own right hand. हालेलुया कि प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ में अपना जो दाहिना और सामर्थी और धर्मी हाथ है उसमें उनको थाम कर रखता And है even though there may be problems in the church like the Ephesus church, और चाहे कितनी भी समस्याएं उस कलीसिया में क्यों ना हो जैसे कि इफिसस की कलीसिया में but the थी, Lord Jesus Christ says परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं that I know your works and who you are and what you do. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें जानता हूँ तुम कौन हो और तुम क्या करते हो And also he says that I live and walk among the seven Hallelujah. golden stands, that is the seven churches. आमीन और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमको जानता हूँ मैं तुम्हारे मध्य में होकर गुजरता हूँ तुम्हारे मध्य में रहता हूँ और ये जो दीवट है ये उसकी कलीसियाएं हैं And thirdly, we see a commendation, a praise of the church at Ephesus. और तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इनके लिए कैसी प्रशंसा लिखी गई In है verses 2 and 3, और प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय की 2 और 3 आयत he में says that I know your works, your toil and your endurance. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये लिखा गया मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम तेरे धीरज को जानता Your हूँ perseverance in the midst of suffering and persecution. और मैं तुम कैसे धीरज रखते हो सताव के बीच में मैं तुमको जानता This हूँ church has been about 50 years old since Paul planted it. और ये जो कलीसिया थी ये कम से कम 50 वर्ष की थी जब से पौलुस प्रेरित ने इसको They स्थापित किया था have preserved in their faith. They have endured all kinds of things. और इन सारे वर्षों में उन्होंने सारे सताव के मध्य में धीरज धरा And also he says that you do not tolerate evil. और उसमें ये भी लिखा गया है कि तुम उनकी बुराई को बुरे लोगों को देख नहीं सकते You have tested those who claim to be apostles. और जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं तुमने उनको परखा है And then he says that you have always been enduring and bearing up for the sake of my name, that you have not grown weary doing that. और उसमें ये भी लिखा है कि तूने धीरज धरा है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते तू थका नहीं And है also they hated the works of the Nicolaitans, which he says he also hates. और उसमें लिखा है कि तुम नीलकुइयों के कामों से भी तुमने घृणा की है So there are four things in the praise of the Ephesians. और इफिसुस की कलीसिया के लिए 4 बातें हैं जिनकी प्रशंसा की गई है Number one, they could not tolerate evildoers, and we as a church also should not be tolerating any kind of evil or evildoers. और पहली बात है ये कि तुम बुरी बात को देखकर तुम चुप नहीं होते और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए गलती को देखकर हमें सावधान रह के चुप नहीं होना है Secondly, they have tested those who claim to be apostles but were not, and have found them to be false. और दूसरी बात ये कि तुमने उनको परखा है जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और उनको नहीं पाया और तुमने उनको अच्छी तरह से परखा है There are many false prophets, there are many false apostles, there are many people claiming to be apostles these days. और इन दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हैं झूठे प्रेरित हैं जो अपने आप को ऐसा बोलते हैं Jesus would write a recommendation or a commendation of praise for us too, if we were also to test them, because it is a command of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह हमारी कलीसिया को भी ऐसे ही प्रशंसा करेंगे यदि हम भी इन बातों को इनको टॉलरेट नहीं करेंगे और जो गलत कर रहे हैं उनको हम परखेंगे There is nothing wrong in pointing out there are false prophets and false teachers and false apostles in our own midst, and we need to expose them. और हमारे मध्य में यदि झूठे भविष्यवक्ता झूठे प्रेरित और झूठे शिक्षक आते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं यदि हम उनको दूसरों के सामने लाते हैं Then he praises them that in the midst of persecution they were enduring. और वो उनको ये भी तारीफ करते हैं कि तुम सताव के बीच में तुम धीरज धर रहे थे And fourthly, he says, you also hate the work of the Nicolaitans. और जो चौथी बात है वो ये कि तुम नीलकुइयों के विषय में भी तुम उनसे घृणा करते हो This was the followers of a person called Nicholas. और ये नीलकुई जो लोग थे ये निकोलस के बहुत ही ज्यादा पीछे चलने वाले थे We don't know much about them because only John mentions twice or thrice in the book of Revelation about the Nicolaitans. और इनके विषय में हम ज्यादा नहीं चाहते कि क्योंकि ये 1 या 2 बार ही यूहन्ना ने पूरी पुस्तक में इसका विवरण दिया है They held false doctrines and things that were not taught by the apostles. It was kind of a cult, and the Ephesians did not like them, and Jesus says, I also do not like the Nicolaitans because of their wrong teaching.
teachings. और ये जो निकोलाई लोग थे, ये गलत शिक्षाओं को, गलत सिद्धांतों को मानते थे और इस कलीसिया के लोग उनको पसंद नहीं करते थे और यीशु कहते हैं मैं भी इनको पसंद नहीं करता। Now, in each of these letters, I also says Jesus says that he has a critique of these Ephesians. और इन सब बातों के बाद प्रभु यीशु मसीह भी बोलते हैं कि उनको किन बातों से घृणा है। What was his issue with the Ephesians? और प्रभु यीशु मसीह का क्या कारण था इन बातों के बोलने के लिए, इफिसियों के लिए? You have abandoned the love you had at first. लेकिन तुमने अपना पहले का सा प्यार छोड़ दिया है। That is both their love for Jesus Christ और ये कि तुम्हारा मेरे लिए जो प्रेम था and their love for each other. और तुम्हारा प्रेम आपस में एक दूसरे के लिए। In the original language, it comes out very emphatically. और दूसरी जगहों पे काफी स्पष्ट रूप से कहा गया Your first love you have left. कि तुमने जो तुम्हारा पहला प्यार था उसको छोड़ दिया। Christ uses this word in the original language, which shows the love of God toward us. He says that same love that you had for me, that God has for you, you have abandoned that. और मूल भाषा में इसको इस प्रकार से बताया गया कि जैसा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया और जैसा प्रेम हमको करना चाहिए वो हमने छोड़ दिया। As I told you, only about 50 years ago, और मैंने आपको बताया कि करीब 50 वर्ष पहले Paul founded this church. पौलुस ने उस कलीसिया को वहां स्थापित किया था। Then a couple of years later, और फिर कई साल के बाद, maybe about 35 years earlier than this letter, और हो सकता है शायद 35 वर्ष पहले, जबकि से पहले कि एक पत्र लिखा जाता, Paul wrote a letter to the Ephesians that is in the New Testament for us. पौलुस ने एक पत्र को इफिसियों की कलीसिया के लिए लिखा था जो नए नियम में पाया जाता है। In that letter to the Ephesians, और उस पत्र में इफिसियों के कलीसिया के लोगों के लिए Paul praised their faith and their love. और पौलुस जो है तारीफ करते हैं उनके विश्वास के लिए और उनके प्यार के But लिए। in these 3 decades or so, और हो सकता है 3 दशक के बाद something happened in that church. कुछ हुआ होगा उस कलीसिया में, They abandoned that love. उन्होंने उस प्यार को छोड़ दिया। Now they were doing the right things. Jesus says, I know your works, you are doing this, you are doing that, great ministry is going on, but this is what I have against you. You have abandoned your first love to me. परंतु वो कलीसिया बहुत कुछ कर रही थी जिसके लिए यीशु ने उनकी तारीफ करी कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन तुमने उस प्यार को जो मेरे लिए था उसको छोड़ दिया। The love, the fervent love and devotion to God should be the thing that should lead us into works or the ministry of God, not the other way around. People like to busy themselves in activities and programs and this and that. But Jesus says that's all good. However, where is your love that you had before? और प्रभु यीशु मसीह उस प्यार के विषय में कहते हैं जिसके कारण ये सब कार्य जो वो करते हैं होने चाहिए, ना कि विपरीत दशा में कि अपने आप को बहुत ही व्यस्त कर ले काम में और तब दिखाएं। वो प्यार जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति, जो परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, वो प्रथम होना चाहिए हमारे जीवन में। Christ wants our hands for ministry. मसीह हमारे हाथों को, यीशु मसीह हमारे हाथों को सेवा के लिए चाहते हैं। Christ wants our heads to understand and to follow the right doctrines. और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हमारे सर को, हमारे दिमाग को, कि हम उसके सिद्धांतों के पीछे चलें। But more than that, he wants our heart Hallelujah. full of fervor and love and relationship that is for the Lord Jesus Christ. Amen. लेकिन उससे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को चाहते हैं, उस प्यार को, उस भक्ति को जो केवल उसके प्रति हो। Finally, he closes with a call to action and warning and promise. और फिर बाद में वो इस पत्र को खत्म करते हैं एक कार्य के लिए, एक चेतावनी के लिए और एक वायदे के साथ। Remember, where were you before? तुम्हें मालूम है तुम कहाँ थे The पहले? heights that you reached for me in your understanding and in your work, in your love for me. और कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और अपने जैसा काम कर। And then repent. और फिर उसके बाद पश्चाताप कर। Do the works, nothing new that you did first. उन कामों को कर जो नई नहीं है, लेकिन पहले प्यार कर। If you do not obey, यदि तू आज्ञा ना माने, I'm coming
मैं आ रहा हूँ, and I will remove your lampstand from its place. तो मैं उन दीवटों को तुम्हारे उन जगहों से हटा दूंगा। Remember what John said about the lampstands? आपको मालूम है यूहन्ना ने इन दीवटों के विषय में क्या कहा? The 7 lampstands are the 7 churches. ये जो 7 दीवट हैं, ये 7 कलीसियाएं हैं। Unfortunately, और दुर्भाग्यवश a couple of centuries later, कुछ शताब्दियों के बाद, I think in the 4th century or so, this church in Ephesus was completely destroyed. और 4वीं शताब्दी में ये जो कलीसिया थी ये पूरी तरह से नष्ट हो गई। But if they had obeyed, लेकिन यदि उन्होंने भी आज्ञा मानी होती, verse 5 says that I will give you to eat of the tree of life. और प्रकाशित वाक्य 1:5 में लिखा है कि मैं तुमको जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा। May, my dear friends, we may heed these warnings that were given to this church today. मेरे मित्रों, काश हम इन चेतावनियों को जो कलीसिया को दी गई है हम उन पर ध्यान As लगाएं। verse 7 closes, let everyone who has an ear listen to what the Holy Spirit is saying to the churches. और जैसे प्रकाशित वाक्य 2:7 में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। How is our relationship? How is our love and fervor and devotion to the Lord Jesus Christ today? हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ, हमारी भक्ति, हमारा प्यार आज कैसा है? Our ears, are they open to listen to what the Holy Spirit is saying to the churches, not just to our churches, to our church, but to the churches around? क्या हमारे कान इन बातों को सुनने के लिए तैयार हैं? न केवल हमारी कलीसिया के लिए लेकिन सारी कलीसियाओं के लिए। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर हमें इन शब्दों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आशीष दे। God willing, we will come back next week studying the church in Smyrna. परमेश्वर ने चाहा तो हम अगले हफ्ते जो स्मरणा की कलीसिया है उसके विषय में सीखेंगे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Gracious Father,